देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए शांति सरोवर क्यों पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल। हमारे कानून के शासन में सही मूल्य, सही सोच, सही कार्य, सेवा और करुणा होनी चाहिए। न्यायविदों का सम्मेलन यानी धर्म और न्याय का संगम। यह बात तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज के मंच से कही। हैदराबाद गच्चीबोली स्थित शांति सरोवर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में ब्रह्मा कुमारीज के न्यायविद प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे संस्था द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवाओं की जमकर सराहना भी की। Dharma does not lie in this. Dharma lies in being and becoming. We believe that we have to be and become something. Not just become readers or lecturers. We must also be and become something that our civilization tells us to be and become. And the Brahma Kumaris have been doing a great work in this, in service, because we always believe that service is worship. We always believe that work is worship. We give the world karma yoga, that you can reach the divine through karma also. But that karma has to be good. That karma must be founded in dharma. तो वही संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने न्याय प्रणाली में आध्यात्मिकता के समावेश पर चर्चा की। The relationships of respect and collaboration mean that then the work that we are engaged in brings about transformation in all that we do. So this vision is a vision of a better world with everyone fulfilling their responsibilities, but everyone also able to claim all their rights, because we are one family, the children of the one above. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति SV भट्टी ने अधिवक्ताओं को नकारात्मक विचारों से दूर रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। न्यायमूर्ति ईश्वरैया, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति B विजयसेन रेड्डी, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति T अमरनाथ, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा और न्यायमूर्ति अलीशेट्टी लक्ष्मी नारायण, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति BD राठी, वरिष्ठ अधिवक्ता D प्रकाश रेड्डी, BS प्रसाद ने भी अपने विचार रखे। The Brahma Kumaris are expecting us, by attaining these three qualities, to contribute to the best to our society. Ultimately, it results in peace, prosperity, and also tranquility. In today's speed world, fast world, smart world, instant, we say, no, we are not ready. We want to learn everything fast, fast, fast. And the shortcut method is, friends, improving your skills and thoughts, mind, by taking a small turn towards spirituality, meditation. Yes, it helps. One and all Brahma Kumaris world over shift from seeking love and happiness to giving it to everyone unconditionally. And in the process, eventually empower souls and the world and become the angels the world presently is looking for. All my good wishes to the entire Brahma Kumaris organization, jurist wing of the Brahma Kumaris, and all the work they do. This family never fails to amaze me in the noble work they do. All my good wishes to all the legal associations who have collaborated to conduct such a wonderful initiative. हमारे निर्णय जो करते हैं या करवाए जाते हैं एडवोकेसी के द्वारा, उसमें आप देखेंगे रचनात्मक रहेंगे, नैतिकता रहेगी, ऑनेस्टी झलकेगी। हारने वाला भी कहेगा कि मैं भले हारा हूँ लेकिन हुआ न्याय है। सभी का यही कहना रहा कि वकीलों को ब्रह्मा कुमारी से सीखना चाहिए कि पेशे और अध्यात्म को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। एक वकील की सफलता उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदा पर नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सेवा पर निर्भर करती है। आयोजन शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में सफल रहा। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। Let us learn from the spiritual leaders. Let us learn that it is not what we earn which will determine our success, but it is the service we render, work we do, which would change the lives of people, that will give lot of satisfaction
and that is determinative of the quality and success of a true professional like a lawyer. परमात्मा ऐसा न्याय करते हैं जो हर आत्मा उनकी कोर्ट में सिर झुका लेते हैं कि सचमुच हमने जो पाप किए हैं उनको मिटाने के लिए हमने प्रयास नहीं किया, तो फाइनल जजमेंट परमात्मा ही देते हैं। समर्पणता का प्रतीक होली पर्व पर विशेष कार्यक्रम। नीलबढ़ स्थित सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में सभी बीके सदस्यों द्वारा होली का पर्व उमंग उत्साह से मनाया गया। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि यदि हम यथार्थ रूप से होली मनाएं तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। होली अर्थात जो बीत गया उसे भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना, यह पर्व समर्पणता का प्रतीक भी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में आर्किटेक्ट दुर्गा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राम कुमार, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आराधना ने भी अपने विचार रखे। सभी का यही कहना रहा कि वास्तव में सूखी लकड़ी हमारे अंदर छिपे कड़े संस्कारों, कमियों एवं कमजोरी का प्रतीक है। जब हम सब मिलकर अपनी कमियों को दृढ़ता की तिली से परमात्मा याद रूपी अग्नि से भस्म करते हैं तथा एक दो को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं, तब होली का त्योहार समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। अवसर पर बहुत सुंदर राधा कृष्ण की झांकी भी लगाई गई। फूलों एवं हर्बल गुलाल की इको फ्रेंडली होली सभी ने खेली। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले से हजारों को मिला परमात्मा संदेश। हरियाणा के निसिंग सेवा केंद्र द्वारा हाल ही में भव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला एवं खुशियों का महाकुंभ 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करनाल सेक्टर 9 के प्रभारी बीके निर्मल के दिशा निर्देशन में एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल के सानिध्य में इस कार्यक्रम में विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकालकर जन जन को परमात्मा संदेश दिया गया। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले में हजारों की संख्या में भाई बहनों को आध्यात्मिक संदेश दिया गया। सभी भाई बहनों ने शिव बाबा के संदेश को आत्मसात किया और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी की। करनाल सेक्टर 7 के प्रभारी बीके प्रेम, घरोंडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, तरोड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश, महम सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना एवं बीके सुमन सभी ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। माउंट आबू से बीके ओमकार ने 5 दिवसीय हैप्पीनेस एवं मेडिटेशन शिविर द्वारा अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे, जैसे अलविदा तनाव, संबंधों में मधुरता, भाग्य लिखने की कलम, आत्म अनुभूति व परमात्मा ज्ञान, राजयोग मेडिटेशन की सही विधि और साथ ही म्यूजिक एक्सरसाइज भी कराई। समाज को जोड़ने का और अच्छी बातें हमारे को अपने जीवन में कैसी उतारनी चाहिए वो नाटिका के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें नीसिंग के अंदर ऐसा मेला देखने को मिल रहा है। रशिया के मॉस्को में मायकमारा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के रिट्रीट सेंटर पर शिव जयंती पर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवसर पर सभी ने मिलकर शिव ध्वज फहराकर उसके नीचे जीवन में नवीनता लाने का संकल्प भी किया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग कर सभी ने पर्व की बधाइयां दी। बीके सुधा ने आध्यात्मिक रहस्यों के साथ पर्व को मनाने का आह्वान किया, तो वही सुप्रीम फादर शिव परमात्मा का दिव्य अवतरण एवं उनके कर्तव्यों के साथ शिव शक्तियां एवं वर्ल्ड लिटरेचर के हीरोज को भी नृत्य नाटिका के द्वारा सुंदर तरीके से दिखाया गया। होली महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र में स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां फूलों के साथ अलौकिक होली मनाई गई। सभी भाई बहनों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इससे वातावरण आनंद और उल्लास से भर गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने बताया कि होली माना पवित्र बनना, बीती बातों की समाप्ति और परमात्मा का हो जाना। बीके लता, बीके गीता ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था की दादियों के लौकिक और अलौकिक नाम, प्रोजेक्टर पर चित्र दिखाकर नाम पूछना, गीतों की धुन पहचानना आदि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो परमात्मा कहते हैं लकड़ी और उपले जलाने से कोई होली नहीं मनाई जाती है कि अपने अंदर के विकर्मों को, विकारों को इस योग अग्नि से जलाना है। यही सच्ची होली मनाना है। बीती को बीती करना है। बाबा ने कहा कि पवित्र बनना है।
नोएडा सेक्टर 48 स्थित सेवा केंद्र ओम शांति भवन पर होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम रूहानी रंग प्रभु के संग मनाया गया। सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा की गई परमात्म छत्र छाया को दर्शाती आकर्षित सजावट ने सभी का मन मोह लिया। बीके रुचि ने सभी को प्रेम, शांति, खुशी, आनंद और सद्भावना का संदेश दिया, तो वही बच्चों और बड़ों द्वारा अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रतिदिन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले भाइयों द्वारा किया गया सामूहिक नृत्य इस कार्यक्रम की शोभा रहा। बीके श्रीकांत ने प्रभु के रंग का विनाशी रंग लगाने और सदा परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऋचा द्वारा होली के पावन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। सभी परमात्मा संग के रंग में ऐसे रंगे कि सारा वातावरण दिव्यता संपन्न रूहानियत से भर गया। महिला सशक्तिकरण हेतु महिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात के वलसाड़ में किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम अब्रामा में स्थित रणभूमि तथा डिवाइन योगासन मार्शल आर्ट्स एवं स्पोर्ट्स ने मिलकर अस्मिता विमेंस योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से हुआ। प्रतिभागियों ने योग क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग मनमोहक नृत्य प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का समापन विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित तथा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ। मुख्य रूप से सब जोन प्रभारी बीके रंजन, स्थानीय प्रभारी बीके संगीता, महिला पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी तनुजा आर्य, पुलिस सब इंस्पेक्टर आरवी चुड़ासमा समेत कई गणमान्य लोग इस आयोजन में उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।